A very good morning to all my dear students. I am Dr. Mohit Kumar Tiwari, working as a professor in the Department of English. So, students, today I am here to present my lecture on the topic role and purpose of communication. Role and purpose of communication. Dear students, here we have role and purpose of communication. As we know that the word communication is derived from the Latin word communicare, which means to share our feelings, sentiment, thoughts and emotions. ओवरऑल हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने विचार को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, एक दूसरे से शेयर करना, आदान प्रदान करना। हमारा टॉपिक इस समय है रोल एंड पर्पस। कम्युनिकेशन का, बातचीत का, वार्तालाप का क्या रोल है और क्या उद्देश्य होता है। लेट अस फोकस ऑन दिस। सो बिफोर आई बिगिन with the main content, here the content is like introduction, objective of communication, definition of communication, role of communication, purpose of communication, and we will have conclusion. Now, introduction. As we know that the word communication has been derived from the Latin word communicare, which means to share or exchange information, news, feelings, sentiments or emotion, etc. by the help of the language. So, students, you know that the communication has been derived from the Latin word communicare, which means to share our ideas, feelings, sentiments, thoughts and emotions. We share our ideas, हम अपने ideas को दूसरे से share करते हैं कैसे? With the help of a language. Language here works as a mean, mode and medium of communication. Language is working as a tool to communication. Language is helping us like a bridge. Means language is helping us to have not only a communication but to have a error-free communication. Means we are going with the help of the language to have an effective communication. An effective communication is such an communication in which we understand what one is saying to one or other. हम क्या बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किससे कहना चाहते हैं, किसको कह रहे हैं। जब हम एक दूसरे की इस विचार भावना को समझते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लेट्स सपोज आई स्पीक समथिंग लाइक आई से आई एम गोइंग टू द मार्केट। मीन्स मैंने कहा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। ये बात अगर जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसकी समझ में आ जाती है कि यहाँ पर डॉक्टर मोहित कुमार तिवारी जी कह रहे हैं कि वो बाज़ार जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये मैसेज उसको कन्वे हो गया तो इट इज़ कॉल्ड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ सपोज अगर वो इस बात को नहीं समझ रहा है, मीन्स ही डोंट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर means I mean to say if he don't have knowledge of that language. Suppose if I say something in संस्कृत लाइक सुप्तस्सिनस मृगा स्वयं न गमिष्यति। मैंने संस्कृत में इस बात को कहा कि सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं कर जाता है। तो इफ़ ही इज़ हैविंग द नॉलेज ऑफ द संस्कृत देन ओनली ही विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ संस्कृत तो उसके ये जो आपने बात कही है समझ में नहीं आएगी। तो इन सच एन केस ये तो हो गया कि हम कुछ बोल रहे हैं, हमने कुछ कहा है, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं, उसकी क्या मीनिंग है, वो हमारी समझ में बात नहीं आई। तो हेयर वी विल हैव नो कम्युनिकेशन। मीन्स वन इज स्पीकिंग बट वन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वन इज स्पीकिंग आउट। So here we will say we are having no communication. So unless and until we understand what one is saying, we are not going to have a communication. Although we are having means I am communicating to you, but if you are unable to understand, that shows that there is no communication. If the meaning is not conveyed fully. So understanding the meaning of those words also which one is trying to speak out is most
and most and very, very necessary. So, in the under the introduction part, we are looking that in the second point that communication can be enlightening as well as misleading depending upon one's skill and proficiency. Yeah, of course, no doubt about this. Communication कैन बी एनलाइटनिंग, ये हमारे लिए बहुत ही एनलाइटनिंग हो सकता है, हमें बहुत ही मार्गदर्शी हो सकता है, हमारे लिए हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, हमारे ज्ञान को और प्रखर कर सकता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम बहुत ही नॉलेजेबल हो सकते हैं और दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों का ज्ञान ले सकते हैं ईजिली। लेकिन इसके साथ साथ along with that it is misleading also, means if the message is not properly conveyed, अगर आपकी बात प्रॉपरली अगले को कन्वे नहीं हुई है या आधी अधूरी बात अगले को कन्वे हुई है तो इससे अगले की जान भी जा सकती है या कार्य बिगड़ भी सकता है। जो कार्य आप चाह रहे थे जिस तरह से हो उस तरह से ना होकर दूसरी तरह से हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है एज वेल एज मिसलीडिंग डिपेंडिंग अपॉन वंस स्किल एंड प्रोफिशेंसी। अगले की क्या प्रोफिशेंसी है, उसकी प्रोफिशेंसी को देखकर, उसकी दक्षता, उसके स्किल, उसके टैलेंट को देखकर ही हमें कम्युनिकेशन का प्रयोग करना चाहिए कि हमें किस प्रकार का कम्युनिकेशन यहाँ पर यूज़ करना है, उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ये हम अगले को रीड करके ही यदि हम कम्युनिकेट करें तो ज़्यादा सही होता है। इफ़ द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ हाईली लिटरेट पर्सन, देन इफ़ यू आर स्पीकिंग इन स्टैंडर्ड वर्ड्स देन ही विल एबल टू अंडरस्टैंड। बट अगर अगले का स्टैंडर्ड एक जनरल है तो आपको जनरल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, आपको जनरल कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ व्हाई इट इज सैड इट कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो। जैसे महाभारत में स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं उनसे उनके शिष्य धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है। अब नर है या पशु है इसको उन्होंने धीमे से कहा। तो यहाँ पर देखिए जो कम्युनिकेशन है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन गुरु द्रोणाचार्य से नहीं हो पाया। जब प्रॉपर कम्युनिकेशन उनसे नहीं हो पाया तो उनको लगा कि अश्वत्थामा मारा गया है और वो ये नहीं सुन पाए कि नर है या पशु है। इसका लाभ पांडवों ने ले लिया और गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। तो देखिए प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती है। तो वी शुड ट्राई टू कन्वे आवर मैसेज to the person who is listening to me in an effective way, means our communication should be barrier free. So communication should be effective. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो बातचीत है, जो कि हम एक भाषा के माध्यम से कर रहे हैं, लैंग्वेज के माध्यम से कर रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव हो। और यदि उसको उस भाषा का ज्ञान है, जिस भाषा का, उसी भाषा में उससे बात करें तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। और इस बात के चांसेस बहुत कम होते हैं कि यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है या वो हमारी बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी संसार की, पूरे ब्रह्मांड की हम बात करेंगे कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसके अस्तित्व का कोई न कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक लक्ष्य होता है। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में संस्कृत में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, क्लास में टीचर ने बताया होगा कि येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न करुणा न दानम ते मृत्युलोके भुवे भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मीन्स बगैर ऑब्जेक्टिव के हम एक मृग के समान है जिसकी नाभि में कस्तूरी है और उसको उसका ज्ञान नहीं है, वो पृथ्वी पर एक बोझ के समान वन इधर उधर भटक रहा है। तो कोई भी चीज़ है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक लक्ष्य होता है। हमें सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होनी चाहिए, तब हमें किसी टॉपिक पर या किसी बातचीत में आगे बढ़ना चाहिए या पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। अगर हम बीटेक कर रहे हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम किस लिए कर रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको आगे हम कैसे कैश कर सकते हैं, इस बीटेक करके हम आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच सकते हैं। जब इस चीज़ की क्लैरिटी हमारे पास होती है तो हमारी पढ़ाई का उत्साह और दुगना हो जाता है और इस दुगने उत्साह के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है अपने मन चाहे लक्ष्य को
बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन भी है यहाँ पर, जैसे द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर पर्सन और ग्रुप। सो द गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन। तो क्या है इसका गोल, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लक्ष्य है कि जो भी जानकारी हमारे पास है, जो भी नॉलेज हमारे पास है, वो हम कन्वे करें एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप, और उस अंडरस्टैंडिंग को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या दूसरे समूह तक पहुंचाएं और अपने गोल को, जो हमारा एक लक्ष्य है, उसको हम कन्वे करें। सो कम्युनिकेशन यहाँ क्या हो गया कि इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी सी about the definition of the communication. Communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to another. एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी बातचीत को पहुंचाना, अपने नॉलेज को पहुंचाना, अपने द्वारा प्राप्त किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना लोगों से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ये कम्युनिकेशन है। दूसरा पॉइंट, द इम्पोर्टिंग or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium. अब देखिए, the imparting means शेयर करना, exchange करना, sharing और exchanging of information by speaking, या तो हम बोलकर या हम लिखकर, और using some other medium। जैसे कि देखिए, देयर आर 4 मेजर कम्युनिकेशन स्किल, LSRW स्किल्स जिनको हम कहते हैं, मतलब लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। तो ये 4 कम्युनिकेशन की मेजर 4 स्किल्स हैं। इनकी हेल्प से हमारा कम्युनिकेशन और अधिक स्ट्रांग होता है और हम अच्छी तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने कह पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि इट इज़ द सक्सेसफुल कन्वेइंग और शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स। ऑफ कोर्स इफ योर कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज, सो ऑब्वियसली इट विल बी अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, नो डाउट। देन व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का क्या रोल है, इसका क्या पार्ट है, इसकी क्या हिस्सेदारी है समाज में या किसी आपके क्लास में, एग्जाम में, सोसाइटी में, एनीवेयर? सो वी सी facilitates internal and external interaction of an organization. If we are working in an organization, the communication facilitates how internally and externally both. Means our interaction between the person is done in an internal way also and an external way also. So here how we are doing our communication? We are doing our communication with the help of a language. Language is helping in transferring our communication from one person to another person. Second point, promotes organizational policies. It promotes organizational policies. So it is the role of the communication. The communication is playing a role over here, that with the help of this means communication, we are able to promote our organizational policies. हमारे organization की जो भी policies हैं, जो भी rules हैं, जो भी regulations हैं, उनको हम promote कर पा रहे हैं। In the next slide again, we see there are different role of communication. Communication के different roles होते हैं। That is, if we are working in an organization, अगर हम किसी organization में काम कर रहे हैं, तो we see there is first downward communication, upward communication, lateral communication and diagonal communication. Downward communication, upward communication, lateral and diagonal communication को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लें कि यूनिवर्सिटी में जो हाईएस्ट पोजीशन पे हैं वो है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर के बाद आपके आ गए डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद आपके डीन आ गए, डीन के बाद HOD, HOD के बाद स्टूडेंट हो गए।
ओके, इतना ही हम अभी समझते हैं। तो हम क्या देखते हैं, अगर वाइस चांसलर सर को कोई बात कन्वे करनी है टू द स्टूडेंट्स, तो he is following the protocol. A chain is there. He is maintaining the hierarchy. He is going to communicate his message to the director. Then director will communicate to the dean, dean to HOD. Then HOD will convey that message to the students. तो in this way देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक प्रोटोकॉल है, एक हायरार्की, एक चेन को मेंटेन किया गया है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को, जो कम्युनिकेशन विच इज डन फ्रॉम द हायर लेवल to the lower level means communication that takes place from the superior to subordinates in a chain of command is known as downward communication. उसको हम लोग downward communication कहते हैं। फिर दूसरा है upward communication। जो upward communication है ये बिल्कुल downward communication का बिल्कुल just opposite है। अब देखिए उसमें क्या था, from upward to downward the communication is done, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन इज डन फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल। अगेन द हायरार्की इज मेंटेन, द चेन इज मेंटेन, द प्रोटोकॉल इज फॉलोड एंड द मैसेज इज बीइंग, इफ स्टूडेंट वांट टू कन्वे सम मैसेज, वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, वांट टू शेयर समथिंग, ही इज फर्स्ट गोइंग टू टेल हिज HOD or faculty, then from HOD or faculty the message will be conveyed to the dean, then to director, and then finally the message will be conveyed to the vice chancellor sir. So this is called upward communication, means when message are transmitted from bottom to top organizational hierarchy, it is top of the organizational hierarchy, it is known as upward communication. Now, lateral communication, when communication takes place between two or more persons who are working at same levels, it is known as lateral communication. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम lateral communication को horizontal communication भी बोलते हैं। Lateral communication is also known as horizontal communication. Lateral communication takes place between two or more persons who are working at the same level, means the person of the same position and rank, means the communication is between student to student, faculty to faculty, HOD to HOD, dean to dean, means the person of the same rank and position. So when in this way the communication is done, this is called lateral communication or horizontal communication. Then we have diagonal communication. Diagonal communication में क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हमें कुछ बात कहनी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी बात को डायरेक्टर सर से कन्वे करना है, तो यहाँ पर क्या है, हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। लेकिन यदि हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, हमें कोई अर्जेंट वर्क है, तो ऐसे टाइम पर हम डायरेक्टली जब अपनी बात को एक भी चेन को तोड़ें, जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हम फैकल्टी से ना कहकर, HOD से ना कहकर डायरेक्टली हम जाके डायरेक्टर सर से कह दें, तो हमने यहाँ एक चेन को जो है ब्रेक किया, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। तो इस तरीके का जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और इस डायगोनल कम्युनिकेशन को हम स्पाइरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, डायगोनल को स्पाइरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सो इन दिस वे diagonal communication is an exchange of information between the persons at a different level across departmental lines. So this is called diagonal communication. So यहाँ पर हमने देखा कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है, लेटरल कम्युनिकेशन है और डायगोनल कम्युनिकेशन है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक हमने यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जांपल लिया कि सबसे पहले वाइस चांसलर हैं, फिर आपके डायरेक्टर हैं, डीन हैं, HOD हैं, फैकल्टी, स्टूडेंट। तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने इन 4 प्रोसेस को समझा। अब हमारे पास है टॉपिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का? बहुत ही सिंपल है, साधारण सी बात है, टू इन्फॉर्म, हमें आपको इन्फॉर्म करना है, हमें आपको जानकारी देनी है। इन्फॉर्मेशन इज पावर। तो भाई जानकारी कोई भी होती है, किसी प्रकार की होती है, वो अपने में एक पावरफुल होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, अहमियत होती है। इंफॉर्मेशन नीड्स विद इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर मेट थ्रू कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन जानकारी हम दे रहे हैं ये कम्युनिकेशन की हेल्प से ही हो रहा है। आई एम कम्युनिकेटिंग समथिंग एंड देन द मैसेज इज बीइंग
ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दूसरा क्या है पर्पस, वी सी टू परसुएट, हमें आपको परसू करना है, आपको किसी बात के लिए कन्विंस करना है, तो उसके लिए भी मुझे कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। तो देखिए सम पॉइंट्स आर मेंशन्ड लाइक बिजनेस वर्क थ्रू परसुएशन, इम्पॉर्टेंट टू परसुएट एम्प्लॉयज, वर्क एफिशिएंटली कस्टमर्स टू बाय आवर प्रोडक्ट्स। तो ये डिफरेंट फील्ड है, कोई भी फील्ड हो सकती है। किसी भी वर्क को लेकर हमें अगर परसू करना है तो कहने का मतलब यही है कि हम विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ही इस बात को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन जो होता है वो लैंग्वेज की हेल्प से होता है। लैंग्वेज एक ब्रिज का काम करता है जो इस पार से उस पार मैसेज को ले जाता है इन ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अंडर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एजुकेट। अगर हमें आपको एजुकेट करना है, आपको शिक्षित करना है, आपको ज्ञान देना है, आपको कुछ स्किल्स बतानी है या स्किल्स सिखानी है, तो उसके लिए भी हम एक कम्युनिकेशन की हेल्प लेते हैं जो कि लैंग्वेज की हेल्प से होता है। फिर आपको किसी चीज़ के लिए यदि मुझे ट्रेन करना है तो दूसरा पर्पस होता है टू ट्रेन समवन फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, लाइक कम्युनिकेशन इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। Training is required to achieve proficiency in specific skills, instructions, demonstrations, practice and discussion. So during all this process, if I am training you, I am training you with the help of the communication only. Next, to motivate. अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है, कोई हतोत्साहित है, दुखी है, उसका कोई कार्य करने का मन नहीं कर रहा है और या उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे केस में टीचर क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको उसकी क्लैरिटी देता है, जीवन के लक्ष्य को बताता है, उद्देश्य को बताता है। इस तरीके से बच्चे में क्लैरिटी आती है और कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन होता है। अब मोटिवेशन देखो तो एक बहुत छोटा शब्द है, टू मोटिवेट एनीवन, लेकिन इसकी आप डीप में जाएंगे इस वर्ड में तो आप ये पाएंगे कि मोटिवेशन एक ऐसा वर्ड है कि हम अगर देखें तो हमारा कोई भी कार्य बगैर मोटिवेशन के होता ही नहीं है। हम जब भी सो के उठते हैं और सोने जाने तक हम ये देखेंगे हमारा कोई भी कार्य हुआ, हमने कोई भी कार्य किया तो विद द हेल्प ऑफ द मोटिवेशन ओनली। अगर हम चाय भी पी रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हम कहीं बाज़ार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की भावना हमारे अंदर है। उस मोटिवेशन की हेल्प से ही हम अपने कार्य को कर पा रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्क एम्प्लॉइज़ उसका पेन लेते हैं, उसको लोड समझते हैं, तो उनके जो सीनियर्स होते हैं कभी कभी उनको एडवाइस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वर्क इज़ सुप्रीम ड्यूटी, वर्क इज़ वर्शिप। अब आप देखिए, अगर आप महाभारत में देखिए तो देखिए अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा है और भगवान कृष्ण से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको इस तरह से शिक्षित किया विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन ओनली, जो कि आज हमारे पास गीता के फॉर्म में हमारे पास लॉर्ड कृष्णा की कही हुई बातें हमारे सामने हैं कि उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए कि युद्ध करना अनिवार्य है तो क्यों अनिवार्य है, आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, इसके लिए उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया। तो आप देखिए स्टूडेंट, जो पहले युद्ध करना नहीं चाहता था अर्जुन, और फिर उसने ये सब बातें सुनने के बाद भगवान कृष्ण की, लॉर्ड कृष्णा की, बहुत अच्छे से उसने युद्ध किया और सबको परास्त किया और पांडव विजयी हुए। तो देखिए मोटिवेशनल पावर, देखिए दूसरा मोटिवेशनल पावर आप देख लीजिए। रामायण में यदि आप जाएं तो आपको बहुत अच्छी लाइन एक मिलती है जिससे कहा जाता है का चुप साध रहो बलवाना पवन तनय सुत पवन समाना। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हनुमान जी एक बिल्कुल जनरल, जैसे बाकी बंदर हैं मंकी हैं वैसे वो भी बैठे हुए हैं। तभी एक जामवन जी आते हैं जो एक रीछ एक भालू होते हैं, और वो हनुमान जी से कहते हैं कि आप अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप बचपन में ये थे, आपको देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त है, वरदान प्राप्त है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते, आपने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। तो इस तरीके से उनको बहुत सी बातें कहते हैं जिससे हनुमान जी मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट होने के बाद वो सीधे लंका जाते हैं और लंका जाकर माँ सीता का पता लगाते हैं, और ना कि केवल माँ सीता का पता लगाया, वो इतना मोटिवेटेड थे कि पूरी एंटायर लंका को जलाकर उन्होंने राख कर दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड द मोटिवेशनल पावर। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कम्युनिकेशन की हेल्प से हम अपने एम्प्लॉइज़ को इन बिटवीन टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं किसी भी कार्य के लिए, ताकि एक जोश एक उत्साह सब में
बना रहे। टू इंटीग्रेट, देखिए इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, बगैर इंटीग्रेशन के वर्क के बारे में थोड़ा सा सोचना कुछ असंभव सा है। कैसे? लेट्स सी। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, डिपार्टमेंट, टेरिटोरियल divisions, different target communication provides the means for building the maturing mutually beneficial relationships। जब एक इंटीग्रेशन की भावना एम्प्लॉयज़ में होती है तो जो कार्य 2 दिन में होना होता है 1 दिन में हो जाता है, 1 दिन में होना होता है तो आधे दिन में हो जाता है, और वो कार्य बड़े ही कोऑपरेशन के साथ होता है और खुशी के साथ होता है। उस कार्य का एक अलग ही आउटपुट होता है जो कि एक इंटीग्रेटेड भावना के साथ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन we come to the conclusion. In conclusion, we conclude about the communication, that communication is very important in every place of business। कोई भी बिजनेस है हमारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हम कहते हैं कि ना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि हमारे जीवन के हर एक कार्य में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। हम चाहें तो अपने कम्युनिकेशन से मित्र बना सकते हैं, हम चाहें तो कम्युनिकेशन से ही बहुत सारे शत्रु उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी बातचीत के माध्यम से हम किसी कार्य को ईजिली डन कर सकते हैं, अपनी बातचीत के माध्यम से हम अपने कार्य को होते हुए भी बिगाड़ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत एक ऐसी शैली है, ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा विचार है कि इसको यदि हम सोच समझकर फिल्टर करके, इसका एनालिसिस करके अगर हम अपनी बात को सामने किसी से कहते हैं तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, कार्य होने के चांसेस अधिक होते हैं। और यदि हम केवल ये सोच लें कि मैं अगले से काम लेना चाहता हूँ, वो मुझसे जूनियर है, हमसे छोटा है, तो कहीं ना कहीं अगले का भी ईगो हर्ट होता है, दबाववश कार्य तो करता है लेकिन उस कार्य में वो अधिक समय भी ले सकता है, उस कार्य को ठीक से नहीं भी कर सकता है, आधा अधूरा कार्य आपके सामने रख सकता है। तो कम्युनिकेशन वर्ड केवल कम्युनिकेशन वर्ड तक सीमित नहीं है। अब आप देखिए हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कम्युनिकेशन का ही रोल है, और देखें तो कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन है। विदाउट कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम शून्य में जाके बैठ जाते हैं। हमारा माइंड, हमारा सोते समय भी हमारे विचार चलते रहते हैं जो ड्रीम्स के फॉर्म में, स्वप्न के फॉर्म में हमारे सामने आते हैं। मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग 24 आवर्स इन अ डे, आइदर through this way or that way, sometime with the help of the words, sometime in an abstract form. Sometime means I mean to say that ideas comes in mind every time. First of all they come in abstract form, and then we take out those ideas in a concrete form and we try to convey our message to the front person. Second point, communication is exchanging information among individual working in an organization। ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन में? कम्युनिकेशन की हेल्प से। फिर कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस फर्म एंड वेरियस डिपार्टमेंट। नो डाउट अबाउट दिस कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जब हम एक दूसरे की बात को समझते हैं और वर्क को इफेक्टिवली करते हैं। Thus, communication plays vital role in all areas of management and business। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे हाउस वर्क हो, ऑफिस वर्क हो, स्कूल वर्क हो, कॉलेज वर्क हो, कोई भी किसी प्रकार का वर्क हो, हमारा किसी होली प्लेस का वर्क हो, कोई रिचुअल्स हो, कुछ भी किसी, द कम्युनिकेशन हेल्प अस इन कम्युनिकेटिंग आवर मैसेजेस effectively। So we can say that communication is a two-way process in which one is the sender and another one is the receiver। तो communication एक प्रकार से हमने कहा यहाँ पर कि is a two-way process, जिसमें एक sender होता है और दूसरा receiver होता है। sender का काम क्या है? sender sends the message। सपोज करिए आपके पास मोबाइल है, you want to convey something to another person। तो मीडियम आपका क्या होगा यहाँ पर? मोबाइल हो गया। माध्यम क्या हो गया? मोबाइल हो गया। मोबाइल के माध्यम से आपने मैसेज किसी रमेश नाम के पर्सन को सेंड किया। रमेश ने जब आपके उस मैसेज को रिसीव किया तो रमेश यहाँ पर क्या करता है? मैसेज को, क्योंकि दो प्रोसेस होते हैं, एक एनकोडिंग हो जाता है, एक डिकोडिंग हो जाता है। एनकोडिंग कब होता है? जब आप मैसेज को सेंड करते हैं। आपने मैसेज को सेंड किया मतलब आपने मैसेज को एनकोड किया, ठीक है। अब रमेश के पास जब मैसेज पहुंचा तो रमेश ने क्या किया? मैसेज को डिकोड किया और फीडबैक लिया। मीन्स जैसे कि आपने पूछा वहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम, वेयर वी कैन मीट टुडे, व्हाट आर यू डूइंग नाउ।
तो उसने फीडबैक लिया कि आप ये कह रहे हैं कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो फीडबैक लेने के बाद आपने रिस्पॉन्स दिया। जैसे ही आपने रिस्पॉन्स दिया, मतलब अब आपने मैसेज को इनकोड किया और जो पहला पर्सन था सुरेश, अब उसने उसको वो डिकोड करेगा। तो इमीडिएटली अब आप सेंडर हो जाते हैं और जो पहले सेंडर था वो रिसीवर हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो हमने देखा कि सेंडर मैसेज विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम यहाँ पर क्या था, मोबाइल था। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू कन्वे आवर मैसेज to whomsoever we want to convey our message. So we can say, no doubt here it is, that communication is very important for all of us. So we should try to communicate effectively. We should try to communicate to the person to whom we want to convey our messages in a way that he or she should follow you, he or she should understand what you want to convey to him. So dear student, this is all about today's topic. We will meet with another topic in my next lecture. So thank you to all of you for today. Thank you very much.